So I'll request all devotees, if possible, please on your videos so that you may hear lecture with more conviction. Yeah. So his name is Vaishnav Prabhuji. Actually, he is my counselor and facilitator. Like last time we had lecture of his name is Amshu Prabhuji. So as Amshu Prabhuji is my counselor, at the same time in my batch, they gave me option of having more than one facilitator as well as counselor. So that's why I chose Prabhuji too at that time. So in 2009, like Prabhuji introducing Krishna consciousness, and then Prabhuji completed his BTech in Pune only, and afterwards, like after getting distinction in from Pune University, Prabhuji worked in Persistent System Limited uh, for 2 years as an IT engineer. He was software developer over there, and during his college days also, like he uh, he was served in SA voice as well as in GDD voice. If you know, GDD voice is the voice which is like a biggest voice, I'll say, in India. So so many students have came out of it actually, and I was also passed out from SA voice only. And then afterwards he helped there or in teaching also. He was oral coordinator in voice, as well as eventually he became then project manager also several times. And in 2015 actually he joined ISKCON, our ISKCON University Temple, which is there in Pune, as a full-time monk, to spread the message of Bhagavad Gita to all the youths. Afterwards, he completed his PDC. PDC course is 2 year course, personality development course, which is under which like they carried under the temple. And afterwards, he completed his Bhakti Shastri course also from there. At the same time, he was a project leader in same GGD voice and SA voice. Then in 2018, like he got like a chance, like he himself took initiative actually preaching Magar Patta city in Kharadi in IT Park. And I know that that time I was just pass out, and I was there with him. So Prabhuji guided me a lot over there, and so many corporate voice came, and they got connected to the voices, which was directly under the guidance of Radhesham Prabhu. And then in from like 2020 to 2024, these 4 to 5 years, Praju was the personal assistant of His Grace Radhesham Prabhu. As you know that we had our first lecture with Radhesham Prabhu, so you know how like, what is the behavior approach and how accurate he is actually. He's a really leaderly person. So if someone is completely fully under the person of such a leaders, surely uh, the same quality you will get in Prabhuji. At the same time, then so many services he did under the Progis assistantship. So like uh, installing the Srimad Bhagavatam set during marathons. At the same time, arranging so many classes, travels of Prabhuji he did. Now Prabhuji currently in ISKCON Hyderabad, and he's doing all the preaching activities, like preaching in NDD voice over there. Yes. So there are so many colleges for it actually. Also corporate preaching also Prabhuji doing over there. Campus preaching in ISKCON Hyderabad also. Also online youth preaching. Prabhuji is having his only online classes for boys. So meantime, I now not I'll put the link of the classes in your group also. If you wish, you may join. So there are so many things. Despite as such, I gave you introduction, but despite of it, actually, personally, Prabhuji have guided me a lot. Whenever I face difficulty, like forming this group, doing this youth preaching, this girls separate youth preaching and boys separate youth preaching, I have done all this thing only due to the guidance of Vaishnav Sharan Prabhuji. And currently now also, whenever I like arrange any lecture of Prabhuji, like we had the lecture of His Grace Radhesham Prabhuji, Nita Swami Mataji. So who inspired me and who gave me the way to arrange their lectures? So Prabhuji is only there. Prabhuji only told me to arrange their lectures, and he only gave me contact. He only provided me each and everything word for. Like so, Miss Little Hare one. Krishna. Yeah. Yes, thank Sufficient, I think. yes, thank you. Yeah. Thank you, Vijay Prabhu. I really appreciate Vijay Prabhu for having such wonderful group of boys and girls from his coaching institute, 11th, 12th standard. Most of you are, I think, 11th, 12th or passed out, 12th passed out like that. You Yeah, know? 12 password Prabhuji. Prabhuji, you're getting my voice, Hare Krishna? Okay.
So wonderful. So very happy to be here with all of you, and I keep getting a lot of reports and many things about your entire group. How you have so many nicely going on. All of you are chanting some rounds of Hare Krishna Mahamantra, and then you have YouTube channel also where you have. I have seen the YouTube channel also. Various devotees are reciting one shloka of Bhagavad Gita. It's very inspiring. So actually, youths are the leaders in the society, and especially when youths take up to Krishna consciousness, they can actually very nicely take up this mission of Srila Prabhupada and reach many souls. Many people are actually suffering for the want of real happiness, but they are going in different places, but somehow they are not getting. They are getting frustrated. So all of you are very fortunate that you have got introduced to Krishna consciousness, chanting every day, being in very good association, and even after your 11th, 12th also, you are getting connected in different centers, in different colleges. So that is very wonderful. And also you have this online sangha. In case somebody is not having physical association, still this online association is very nice. I heard that Radheshambru was the first one inauguration. Radheshambru gave the class. Then Nitai Sevini Mataji gave the class. Then last time Amshupru was there. And it's very fortunate to be here with all of you. So today we are going to discuss about the glories of Kartik month. So Kartik month has already started. It is, I think, already 10, more than around 10 days are over. So, but still 20 days are remaining, and I hope all of you are already doing different things in the month of Kartik. So I just wanted to share a few more things which will help us to progress in our devotional service, and it will bring us closer to the Lord. So we'll have short prayers and then we'll start the discussion. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So the month of Kartik, it is said that there are 12 months in a year, but the most important month for especially for the Vaishnavas is the month of Kartik. And why Kartik? Because basically every month is having a deity, predominating deity. And in Kartik month, that deity is Srimati Radharani. So this that's why because this month is very dear to Radharani, so that's why Krishna also likes this month very much. And you see that most of the pastimes of the Supreme Lord, it has happened in this month. Very intimate pastimes. Some of that we will be discussing in our discussion. So to begin with, I will tell you one story from Skanda Puran, which comes about a rat. So there was a rat once. So what happened is this rat always used to go whenever rat, many times our kitchens, if it is not cleaned properly, rats will come and enter. So that's how rats are always looking for something eatables and like that. So there was a Vishnu temple, and this rat used to always come and eat because the extinguished lamps will be there. After offering the lamps to the Lord, the extinguished lamp, it used to go in one corner. So the rat used to go and eat all the ghee which is remaining in the wicks, and then that lamp is there. So the ghee, the rats used to eat it.
So one day what happened? Rat was very, very hungry. And Rat thought that, oh, I'm so hungry. I can't wait till the time, till night when the extinguished lamps are kept. So he was very hungry. So then Rat thought that let me go to the Vishnu temple and let us see if some lamp is still there at that time. So when he went, there was one lamp which was being lit up in front of the Lord, and it was lit up in front of the Lord, and he saw that it was almost getting extinguished. Very less flame was there, burning flame. Very less it was. So then it went. It was very, very hungry. Just started eating the ghee in that wick lamp, and then what happened? He started eating, but in the course of his eating the ghee, actually he pushed that wick. And as all of you know, when the wick is pushed, initially when the lamp is getting extinguished, if you push it little bit, then it actually the flame increases. And that's what happened. The flame started increasing. And the Lord who saw this scene, he thought that, oh, this is a rat, even in this the body of a rat, it still wants to offer me a lamp. So that was considered a devotional service. So then not observe this. Even unintentionally he did that. Lord took it as a service. Then this rat again was trying to eat. Then in that what happened is that wick got stuck to his teeth, and then because of that, that burning lamp, it started burning his body also, and then eventually suddenly started feeling very warm. What is this hot? And suddenly found that he was having the fire has caught all over his body, and then he started jumping up and down, started jumping there in front of the Lord only. And Lord thought that, oh, he is getting his full body is burnt, but he is dancing in front of me even in this position. So in this way, the one thing was, so this was also taken as devotional service, and the rat of course died there, and then he got liberated. So this rat got liberated. Just what he did, actually did not do anything. Intentionally did not do anything. He just came to eat just to satisfy his senses. He just came there. But Lord took it as a devotional service. So this is, and why it happened, it is said that this was a month of Kartik. It was on the day of Kartik that this lamp offering by the rat was done. And then he was liberated. Of course, he got a human birth and finally went to the topmost destination, the spiritual world. So this story comes in Skanda Puran, which tells us the importance of practicing devotional activities, basically the glories of devotional service. So whatever we do in our life, our all the activities should be towards spiritual. We may be doing our studies, we may be doing our jobs and all, but finally we should know that that is my ultimate goal of life. And I'm here now. I'm practicing. All these things are required for me. Studies are required. I have to do a job. I have to take care of the family. But the goal should be fixed to go back to Godhead. So for that, we need to intensify our devotional activities, devotional practices. So that can happen only when we do, and especially in the month of Kartik, it is a very good chance for us. Like you see, sometimes in Diwali or some special function festivals are there. So the people they open a big sale on discount. Two t-shirts or something, then you will get one more t-shirt free. Like that, they will have sale, or we call mela or something. So there will be lot of discount rates are available. So people, there is so much crowd will be there because that sale is only for 1 day or 2 days. So lot of crowd, people are all crowding there just to get those things. So similarly, for devotional service, this is the month of discount in the Kartik month. So discount means because so much is available. Whatever things, it is said that whatever activities you do in this month, whatever spiritual activities, that gets eternal benefit. It multiplies by thousands of times. So doing devotional activities on other times, it gives of course eternal benefit, but especially when it is done in the month of Kartik, it gets multiplied by 1,000 times. Even small devotional service, it will get such 1,000 times more benefit we will get, and that's why it is very, very auspicious to do different to intensify our devotional activities in this particular month. So many devotees, they take different vows in this month.
That some devotees, if they are chanting certain number of rounds, they say that okay, this month I will chant some extra rounds. I will, and especially this month, in case they like, some devotees take the vow of fasting from sweet or some particular items which they like very much, because throughout the year they are taking nicely, but then one month they want to do austerity so that they can control their senses also. At the same time, the austerity is pleasing to the Lord, and the benefit is also eternal. So in that way. So in this regard, there is a verse which comes in Bhagavad Gita. We all will recite that. So I just want to share the Bhagavad Gita here. Okay. Yes, Guruji. Now, Yeah. This is a Bhagavad Gita text, chapter 2, text 40. Is it visible? yes, Guruji. Yes, Guruji. Okay. So please recite this verse after me. नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न आयो न विद्यते अल्पमपि अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो मातो भयात्. त्रायतो मातो भयात् Yeah. नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य. Swalpam, that means little devotional service, त्रयते महतो भयात्. It can actually deliver one from the greatest fear. Let us see the translation also. Someone can read. In this endeavor, there is no loss or diminution. And a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Yeah, in this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can save one from the most dangerous type of fear. Can you imagine? Little endeavor, and you can be saved from that. You can be protected from the most dangerous type of fear. So, anyone can tell what is the most dangerous type of fear in our life? What can be the most dangerous? Yes. forgetting the Supreme. Forgetting the Supreme Lord, correct? But okay, that is also there. But anything else, most dangerous type of fear. And this devotional service, little bit devotional service, it is going to save you from that thing. I will die. Okay, death. I'm not saying, but death will come even for devotees. But Birth and death cycle. cycle of birth and death, okay. Anytime we can die. There is no time. Yeah, death is almost dangerous, but most dangerous is what? All these answers are right. Forgetting the Supreme Lord, death. But I am looking for one answer which Krishna is telling here in Bhagavad Gita. Vaishnava Prad. Vaishnava Praj. No, this is even for the new people also. This is applicable. This verse, even if they are not done any Vaishnava Praj. Comment somebody is writing fear of performing sinful activities. No, actually there is one very most dangerous type of fear, that is gliding down to the lower species of life. Okay, can you speak in Hindi? Some boys, yes. Okay. मनुष्य मनुष्य जीवन में आकर भी Actually, जो ये what we say, gliding down to the lower species of life, मतलब जो जानवरों के शरीर में जिसको जन्म मिलता है, actually that वो बहुत ही it's very very dangerous it is, because what happens is animal life, all of you know that, जैसे जो जानवरों का शरीर रहता है तो उसमें it becomes very tough for the people. Anyone can tell why it is dangerous to glide down to the lower species of life? जो animals या birds, उनके species में जाना dangerous क्यों होता है? Lower consciousness.
Okay. They can't perform spiritual practices. Exactly. Correct. They cannot. They cannot वो प्रैक्टिस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम सब यहाँ पे जूम पे आए हैं, वी आर, हम सब यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी जानवर को बोलूंगा कि चलो चलो हमारा भगवत गीता क्लास है, आ जाइए सब लोग, तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबको दे उनको बस उनके खाने का चिंता है, उनके सोने का। अगर आप किसी भी जानवर को देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ खाना पीना उसी के इसमें रहते हैं, खाना ढूंढते रहना। जैसे हम कुछ कुछ समय पहले एक धाम में गए थे, इतने सारे उधर बंदर थे, किसी के पास भी कुछ खाने का सामान दिखा तो बंदर सब टूट पड़ते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो जानवर हैं सारे वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खाने का वो इंतजाम करते रहते हैं, और रात को सोने का, रात को उनको सोना रहता है और दिन भर खाना। लेकिन जो शरीर हमको मिला है, जिसका जिसका मनुष्य का जो शरीर है उसमें हम मनुष्य का जो शरीर मिला है हमको, तो उसमें एक्चुअली हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम सिर्फ इसी में सीमित नहीं रहेंगे कि मेरा निद्रा, दिस आहार, आहार निद्रा भय मैथुन, तो इसी में नहीं है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है वो इससे बहुत कुछ आगे कर सकता है। तो बेसिकली द टू थिंग्स, व्हाई एम आई सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं इस जीवन में क्यों सफरिंग क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ रहा है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, सब लोग स्टडी कर रहे हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर गोइंग ऑन लाइक दैट, बट आगे क्या है, जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो मैंने भी करना चाहिए, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर ये, अगर मनुष्य वही जो आदतें करता है जो कि जानवरों से होती है, तो देन मनुष्य और जानवरों में कुछ फर्क नहीं होता। जैसे वो महाभारत में एक वर्ष आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समानः। तो उसमें कहा जाता है कि अगर मनुष्य पशु के, पशु और मनुष्य, पशु के तो चार आदतें होती है, आहार निद्रा भय और मैथुन, लेकिन अगर मनुष्य भी यही चार चीजें करता करता है तो उसको भी जानवर ही माना जाता है। लेकिन मनुष्य उसको कब कहा जाता है, जब वो आध्यात्मिक जीवन में आता है, जब वो स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेता है, जब वो चैंटिंग करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो देन ही इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल, देन ही इज एक्चुअली रियल ह्यूमन बीइंग, एंड देन उस स्तर पे आने के बाद फिर हमको अगले स्तर पे जाना है, जब वन बिकम्स डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एंड देन वन कैन गो बैक टू गॉड। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो ये जानवरों के शरीर में ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये भक्ति कर पाए। ऑफकोर्स यहाँ पे जो हमने अभी स्टोरी सुना था एक चूहे का, तो चूहा तो चला गया लेकिन वो डायरेक्ट नहीं गया, उसको उसको लिबरेशन मिल गया, मीन्स ही एक्चुअली गॉट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, उसको मनुष्य का शरीर दिया गया और उसके बाद फिर उसको भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो इसीलिए, लेकिन तो मनुष्य जीवन में हम डायरेक्टली भगवत धाम जा सकते हैं, तो वो मनुष्य जीवन में ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, हम जो ये वर्ष हमने पढ़ा भगवत गीता में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। So in this endeavor, that means in the endeavor to become Krishna conscious, there is no loss or diminution, इसमें कोई भी लॉस नहीं है कुछ। और जो लिटिल एडवांस में जब हम करते हैं तो वो हमको बड़े से बड़े डेंजर से भी बचाया जाएगा। तो मेनली इट इज ग्लाइडिंग डाउन टू द लो स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो जो भी ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी ने किसी के माथे पे तिलक है और गले में अगर कंठी माला है और वो भगवान का नाम ले रहा है, चैंटिंग, ही इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एवरी डे, so then Yamraj or the Yamadutas, they will never catch him. As soon as they see somebody having this tilak and all, they immediately run away from that place. So यमराज कभी भी ऐसे भक्तों को जो भगवान के भक्त हैं उनको कभी भी यमलोक नहीं लेके जाएंगे।
क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस मिल चुका है। किसी को पता है वो एक्सपीरियंस कहाँ मिला था? अजामिला। हाँ, करेक्ट, अजामिल। तो अजामिल उसके टाइम हुआ था, क्योंकि अजामिल ने बहुत सारे बुरी आदतें किए थे। तो यमदूत को लगा रही ये तो, इसको तो हम नरक में लेके जाएंगे, ही इज वेरी क्वालिफाइड टू गो टू हेलिश प्लैनेट। लेकिन यम विष्णु दूतास भी उस वहां पे आ गए, उसने बोले कि अरे ये तो भगवान का नाम ले रहा है, ये कैसे सिंफुल एक्टिविटी में जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत ही उसको तो उनका बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ। उसके बाद विष्णु दूतास took him to the of course Vishnu Dutta saved him from the Yamdutas. Then he did his tapasya in Haridwar and then went back to God. So ऐसा हम देखते हैं कि भगवान का भक्ति इज वेरी वेरी पावरफुल। इतना पावरफुल है कि हम जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उससे हम सारे कठिनाइयों से बच सकते हैं। और या फिर अगर कठिनाइयां हमारे जीवन में आती भी है तो हमको उससे लड़ने का साहस हमको इस आध्यात्मिक जीवन से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे किताबों से मिलता है। तो अगर तो इस लेटर थोड़ा हम परपट भी पढ़ लेंगे इस वर्ष का। दिस ओके नो? मैं थोड़ा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके बोलूंगा। Yes, sir, is completely fine. तो यहाँ पे बोला गया है परपट, activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. तो यहाँ पे कहा गया है कि जब हम भगवान के कोई भी कार्य में लगते हैं या फिर कोई भी कार्य है जो भगवान के प्लेजर, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, जैसे आप लोग सब लोग स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडीज कैन आल्सो बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। कैसे? कि अगर मैं अच्छे से स्टडी करूंगा तो देन आई कैन प्रीच ऑल्सो नाइसली। इफ मेरा अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो देन मैं फिर से मेरे फ्रेंड्स को भी बता सकता हूँ। पीपल विल आस्क नो, ओ दिस बॉय इज टॉपर इन हिज 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड। तो उनको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, एंड देन यू कैन से दैट बिकॉज आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, सो दैट एक्चुअली हेल्प मी टू कंट्रोल माय माइंड। हरे कृष्णा के जप की वजह से मैं अपने मन को नियंत्रित कर पाया, और उसके वजह से मेरा जो भी समय बुरी आदतों में जाता था वो सब मैं अपने स्टडीज को दे पाया। उसकी वजह से मैं, so then many people will be attracted, okay, let me also chant and become focused in my life, because everyone is looking for focus in their lives. और दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है कि any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. तो आप देखेंगे कि कोई भी कार्य जो है मटेरियल प्लेन पे, सपोज आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली, आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आई थिंक मुझे चेंज करना चाहिए, आई विल चेंज माई फील्ड और समथिंग। तो क्या आपको डिग्री मिलेगा इंजीनियरिंग में? 1 साल 2 साल किया या फिर कुछ महीने, नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो बेसिकली मटेरियल लाइफ में जब तक आपका पूरा 4 साल कंप्लीट नहीं होगा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में सपोज फुल लाइफ आप कर भी नहीं पाए भक्ति, इट यू जस्ट स्टार्टेड फॉर 1-2 years, और उसके बाद कुछ हो गया, मृत्यु आ गया, काहीच नाही करत कोण कोण आहे काय उसके बाद क्या होगा? तो उसके वजह से स्टिल यू गेट द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ फॉर वॉट एवर अमाउंट यू हैव डन। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारा 2% अगर हमने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट किया है तो अगले अगले लाइफ में, अगले जीवन में हमारा 3% से स्टार्ट होगा। अगर इस लाइफ टाइम में अगर हमने 30-40% कर दिया हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो अगले लाइफ में 41 42 ऐसे चालू होगा। तो इसलिए जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम करते हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है, जबकि मटेरियल एक्टिविटीज आप 100% तक भी जाएंगे तो भी वो, जैसे अगर कोई बोला कि मैं तो बहुत वेल्दी आदमी बन गया इस जीवन में, और या फिर किसी ने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लिया, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर लिया, उसके बाद बड़े माइक्रोसॉफ्ट और सम अदर कंपनी गॉट वेरी नाइस जॉब ऑल्सो, सब कुछ वेल्थ है, एवरीथिंग ही गॉट,
पर जैसे ही उसका मृत्यु आ जाता है, उसके बाद क्या? मृत्यु आने के बाद क्या करेगा वो? उसको अभी मृत्यु आ गया, दूसरा जीवन मिल गया, मे बी ही गॉट, अगर जैसे सपोज वी से दैट उनको मनुष्य का शरीर ही मिला है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अगर उसको याद भी आया क्योंकि पिछले जीवन में मैं आईआईटी से डिग्री किया था, अभी क्या वो फिर से अपना आईआईटी डिग्री दिखाएगा? दिखा सकता है कि मैं पिछले जीवन में मैंने इंजीनियरिंग किया था आईआईटी, और पिछले जीवन में मैं इस कंपनी में था, मेरा अकाउंट भी है अभी भी, मुझे वापस दे दो मेरा पैसा, या फिर मेरा लैंड, या फिर मेरा घर। तो लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं, ये मे बी दिस इज कोई तो पागल आदमी है, जस्ट स्पीकिंग समथिंग, नोबडी विल बिलीव ऑल्सो। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जो हमारा भौतिक जीवन है उसमें हम कितना भी प्रयास करें, तो जब तक इवन वो 100% हो भी गया तो उसका लाभ हमको अगले जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ हम कार्य करते हैं वो भगवान हमेशा जैसे आपने देखा होगा जगन्नाथ जी, उनके बड़े बड़े आंखें हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बड़े आंखों से उनका ये भी नहीं है, आईलिड्स बोलते हैं ना, वो भी नहीं है उनकी, ब्लिंकिंग वगैरह कुछ नहीं होता। हम एटलीस्ट ब्लिंकिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारा आंखें बंद हो जाती है, लेकिन उनके इसमें आंखें भी बंद नहीं होती। तो वो ऐसे कहा जाता है कि भगवान हमेशा देख रहे हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान नोट कर रहे हैं। ओके, ये पर्टिकुलर डिवोटी है, सो उन्होंने ये जैसे विजय कुमार प्रो ने इतने इतने प्रोग्राम्स लिए, इतने स्टूडेंट्स को भगवत गीता पढ़ाया, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा एक इसमें, और बाद में फिर उस तरीके से उनको रिजल्ट मिलेगा। भगवान हमेशा याद रखेंगे कि इस भक्त ने क्या सेवा किया है, इस भक्त ने कितने लोगों को मेरे बारे में बताया है, कितने लोगों को मेरे पास लेके आया है। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसको हमारा बहुत अ, हमेशा के लिए हमको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो भी मटेरियल भौतिक जीवन में जो कार्य है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रहता है, बट देन इट इज लाइक इट इज अशाश्वत, वो छूट जाता है टेम्पररी। तो उस तरीके से, तो इस इन दिस रिगार्ड एक स्टोरी आता है जहाँ पे एक आदमी था। एक्चुअली आदमी अ, पूरा जैसे अजामिल की जैसे ज्यादा उसका हमेशा गलत गलत आदतों में रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, स्पिरिचुअलिटी के लिए बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है, भगवत गीता दो वो बोलता मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो हमेशा अपने भौतिक जीवन में व्यस्त रहता था, बिजनेस करता था, गलत आदत, गलत कमाई करता था, पैसे वगैरह। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, भक्त लोग हमारे डिवोटीज सारे मंदिर जा रहे थे। मंदिर जाते हुए तो उनको लगा कि अरे भगवान के लिए कुछ फूल वगैरह लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने तो जा रहे थे, तो ये आदमी जिसका घर था तो उसके घर गए, बोले कि हमको भगवान के लिए कुछ ये चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए वी वांट टू टेक सम फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन। तो उसका बहुत बड़ा गार्डन था। तो इनको लगा कि इतना अच्छा गार्डन है, क्यों ना भगवान को ऑफर किया जाए ये सारे फ्लावर्स। तो वो आदमी बोला ठीक है, कृष्ण के लिए लेके जाइए ना, कृष्ण के लिए हमारे पुष्प लेके जाइए, अर्पण कीजिए, लाइक दैट ही जस्ट सेड। he did not do any spiritual activities in his entire life, but this he just spoke this word by the mercy of the devotees who came there। वो बस बोले कि ठीक है भगवान के लिए लेके जाना, लेके जाइए ये सारे पुष्प। उसके बाद भक्त लोग बहुत खुश हो गए, सारे फूल उन्होंने तोड़ दिए और जाके मंदिर जाके उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सालों बाद ये आदमी, इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद यमदूतास, ऑफ कोर्स यमदूतास आर वेरी अलर्ट। जैसे किसी किसी क्या बोलते हैं, किसी क्रूएल आदमी का ऐसे मृत्यु हो जाता है, तुरंत उसको यमदूता आके उसको पकड़ के लेके जाता है। तो इसको भी पकड़ के लेके गए, इसके सोल को, आत्मा को लेके जा सकते, बॉडी तो गया, बॉडी को तो जला देते हैं, तो उसके आत्मा को लेके जाते हैं यमलोका में। और उसके बाद उसको बेसिकली उसको बताते हैं कि आपने ये सारे बुरे आदतें कर्म किए हैं आपके जीवन में, तो उसके वजह से आपको बहुत सालों सालों तक आपको नरक में आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा। सो देन वो बोला कि ओ, और नरक का अगर आपको पता होगा नरक में क्या क्या होता है एक्चुअली, वो मैं बताऊंगा नहीं, बट वेरी वेरी बेसिकली लॉट ऑफ सफरिंग कम्स इन द नरक।
या सो नरक में बहुत तकलीफ हो रहता है। तो वो बोले कि आपको यहाँ पे सालों सालों तक रहना पड़ेगा। तो उसके बाद नरक में सालों तक रहना पड़ेगा। लेकिन वो बोले, यमदूता उनको बोले कि इतने सारे बुरे आदत के साथ आपने एक अच्छा आदत भी किया है, एक अच्छा काम किया है आपने। तो वो उसको आश्चर्य लगा कि मैंने अच्छा काम भी किया है, क्या है वो। तो देन यमदूता बोले कि एक्चुअली आपने एक दिन गलती से आपने बोल दिया था कि कृष्णा के लिए फूल लेके जाओ यार, और आपके गार्डन से आपने बनाए, आपने जो पेड़ लगाए थे उसके फूल भगवान को अर्पण हुए। तो उसके वजह से और आपको थोड़ा बहुत डिवोटी का एसोसिएशन भी मिल गया, लवा मात्र साधु संग, तो वो भी मिल गया। और भगवान का नाम भी ले लिया, और भगवान का सेवा भी हो गया, भगवान को फूल भी अर्पण हो गया। तो उस वजह से आपको हम 5 मिनट के लिए स्वर्गवास देंगे। 5 मिनट के लिए वो जो आपने कार्य किया उसके वजह से 5 मिनट स्वर्गवास, और बाकी सालों सालों तक, मे बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स नरक में सड़ना पड़ेगा आपको। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नरक में रहो सालों सालों तक, हजारों सालों तक, उसके बाद 5 मिनट के लिए स्वर्ग में जाओ, या फिर स्वर्ग में 5 मिनट के लिए जाओ और उसके बाद नरक में हजारों साल आपको ये करना पड़ेगा, तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो। तो देन दैट पर्सन थॉट, अरे मैंने पूरा जीवन इतना गलत था, देखिए मुझे पता ही नहीं था कि आई नेवर न्यू दैट देर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। मुझे पता नहीं था उसके बारे में। तभी देन वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। तो देन उसको आइडिया है, अरे मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत सेवा किया भगवान का, उसकी वजह से मुझे 5 मिनट मिल रहा है। तो लेट मी गो टू द हेवनली प्लैनेट ओनली। चलो स्वर्ग में जाते हैं, 5 मिनट एटलीस्ट थोड़ा राहत मिल जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे नर्क में। फिर आदमी को यमदूतस बोले ठीक है स्वर्ग में भेजेंगे, तो उसको स्वर्ग में भेज दिया 5 मिनट के लिए। तो स्वर्ग में आपको पता होगा स्वर्ग का राजा है इंद्र। एंड इंद्र का बहुत बड़ा गार्डन है, नंदकानन गार्डन बोलते हैं उसको। तो नंदकानन गार्डन में ये चला गया था। उधर जैसे ही पहुंचा उसके बाद बस 5 मिनट थे। उसमें पहुंचने के बाद उसने सोचा अरे क्या करना चाहिए। लेकिन उसको बहुत लगा कि मैंने एक सेवा किया, भगवान का सिर्फ एक नाम लिया, उसकी वजह से इतना मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो क्यों ना यहाँ पे मुझे एक पेड़ दिख रहा है, इतने सारे पुष्प है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, सारे पुष्प उठाए, वो एक एक पुष्प तोड़ने लगा। एक पुष्प तोड़ के ऐसे भगवान को अर्पण कर रहा था। भगवान का हाथ थे उसको पता नहीं था, लेकिन वो ले रहा था। ओम ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, एक एक पुष्प तोड़ के वो बोलने लगा। ओम त्रिविक्रमाय नमः, मधुसूदनाय नमः, सो ओम वासुदेवाय नमः, ओम दामोदराय नमः। तो ऐसे बोल के ऑफर करते रहा, एक एक नाम भगवान का, अलग अलग नाम नाम ले रहा था। सडनली जब उसने समय देखा, तो उसके समय में अपना वॉच देखा उसने। तो उसको लगा कि अरे बहुत टाइम हो गया, 5 मिनट के लिए बोला था स्वर्गवास, लेकिन अभी तो टाइम बहुत हो चुका है। तो उसने टाइम देखा तो ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके थे। सो देन उसको लगा अरे कोई आया नहीं मुझे लेने के लिए, मुझे लगा कि वो मुझे नरक में लेके जाएंगे। तो उसके बाद उसको एक चिट मिला वहां पे, एक चिट लिखा था। तो उसमें बोला कि आपने ये 5 मिनट में इतना भगवान का नाम लेके, इतना श्रद्धा से भगवान का नाम लिया कि आपका जो नरकवास था वो कैंसिल हो चुका है। तो उसका नरकवास कैंसिल हो गया। एंड देन ही वाज प्रमोटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान का जो भी हम भक्ति करते हैं उसका हमको बहुत ही फायदा होता है। तो इसलिए एनीवे, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट एनीवे वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस, वी हैव टू डू सम एक्टिविटी, वी हैव टू डू सम सर्विस। नोबडी कैन से दैट आई एम नॉट डूइंग एनी सर्विस और एनी, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। एवरीबडी हैज, सबको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। then why not to offer that service, or why not to do that service for the pleasure of the Lord। तो अगर हम वो कार्य भगवान के भक्ति और भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो फिर उसका कुछ उपयोग नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसका अच्छे तरीके से ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने के बहुत ही उपाय हैं। तो नाउ अभी मैं आपको एक पीपीटी दिखाने वाला हूँ। पीपीटी के पहले ओके पीडीएफ दिखाऊंगा, उसमें हाँ ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ दिखाया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर। कोई ये पढ़ सकता है, ये ट्रांसलेशन ऑफ ऑल प्लांट्स।
this one paragraph. Of all plants, sacred Tulsi is the most dear to me. Of all months, Karthik is the most dear. And of all places of pilgrimage, my beloved Dwarka is most dear. And all and of all days, Ekadashi is the most dear. Padma Puran. Yeah. Yes, Padma Puran, Uttarakhand. So of all the months, Kartik is more dear. So Kartik month बहुत ही स्पेशल है, यहाँ पे कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है। ये आप दामोदर राधा यशोदा दामोदर का फोटो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो 5 चीजें हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। तो पहला है विजय प्रो, यू कैन रीड Yes. Japa. 5 things. Chanting the 6. holy name of the Lord. It is first. Worship Krishna by offering ghee lamp, flower, incense, food, and etc. Practice brahmacharya, celibacy. Worship the Tulsi Devi. Give in charity and perform austerities. So ये 6 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सो आप सब लोग, विजय प्रभु मुझे बता रहे थे कि आप सब लोग चैंटिंग करते हैं। सम ऑफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड, सम ऑफ यू आर चैंटिंग 8 राउंड्स, 4 राउंड्स। तो बहुत ही अच्छा है। और कार्तिक मास में जितने जो भी आप जप करते हैं उसको ज्यादा इंटेंसिटी से ट्राई कीजिए। देखिए ये जो आदमी स्वर्ग में जाके इतना इतना बुरा आदतें करने के बाद भी, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ गया था भगवान के नाम के प्रति, उसके बाद स्वर्ग में जाके इतने इसने इतने नाम लिए तो उसका नरक लोक ही कैंसिल हो गया। तो उसी तरीके से ऑफ कोर्स हम जब इसलिए नहीं करते कि हम हमारा जो सारा सीन चला जाए। हम तो जब इसलिए करते हैं कि भगवान को वो बहुत प्रिय है और भगवान का स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अदरवाइज हमारा जीवन पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए हम जप करते हैं। और जप का सही समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ के स्नान करके हम जप के कार्य में लगते हैं। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी वी गिव इन द डे इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद है वर्शिपिंग कृष्णा बाय ऑफरिंग घी लैम्प, फ्लावर, इंसेंस एंड फूड। तो एटलीस्ट हमारे जो रेगुलर डे है उसमें हम भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्चुअली पुष्प हर एक के घर में रहते हैं, सबके घर में पुष्प है, प्लांट्स बहुत कुछ रहता है। बस हमको क्या करना है, वो पुष्प भगवान को अर्पण करना। तो दैट इज वेरी इजी। और यहाँ पे बोला है घी लैम्प। तो स्पेशली कार्तिक मंथ में जब हम दिया अर्पण करते हैं भगवान को, उसके बहुत सारे महत्व, बहुत सारे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू रीड ऑल्सो। वर्शिपिंग कृष्णा बाय ऑफरिंग घी लैम्प, हमने तो इसका भी उसके बारे में भी थोड़ा सुना है। उसके बाद प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, दैट मीन्स unnecessarily not engaging our senses in sense gratification activities but controlling them and practicing brahmacharya. Then worship of Tulsi Devi. तो तुलसी शालिग्राम विवाह जो होता है वो भी इसी महीने में आता है। और तुलसी इज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्ण, तो उसके वजह से हम तुलसी का भी वर्शिप करते हैं। उसके बाद है गिविंग चैरिटी। सो दान देना। जैसे आप लोग तो सब स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या दान दे सकते हैं? आप आपका एक्चुअली दान डजंट मीन ओनली मनी और इट डजंट मीन ओनली that thing. Dan also means give your consciousness, give your devotion, give your love to Krishna. कृष्णा बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। सो ऑफर इवन पत्र पुष्प फल तोयम मीन्स वाटर, इवन ऑफर दैट but offer it with love and devotion, then it is very very pleasing to me. So I don't care what you offer, I see how you offer. So that is very important. Then perform austerities. तो हमने तपस्या भी करना चाहिए। तो मैंने बोला था जैसे कुछ कुछ पाउज है इस डिवोटीज लेते हैं, सो दैट आल्सो वी कैन डू टू कंट्रोल अवर माइंड एंड सेंसेस। ओके, नेक्स्ट कोई पढ़ेगा ये इन द मंथ ऑफ कार्तिक? In the month of Kartik, one should daily worship Lord Damodara and sing the Damodara Ashtakam, the 8 prayers of Lord Damodara, which please Lord Damodar, written by the sage named Satyavrata. Yes, in the month of Kartik, one should daily worship Lord Damodar and sing the Damodar Ashtakam. तभी मैंने जब मीटिंग ज्वाइन किया ऑलरेडी राधेश्याम का दामोदर अष्टकम चल रहा था। So either we can sing ourselves or we can play some Damodar Ashtakam, and we can have a small frame of Radha Damodar, Yashoda Damodar in our home, and we can daily offer one lamp, and we can even encourage our family members also.
to offer a lamp, which pleases Lord Damodar, written by the sage named Satyavrat Muni. So यहाँ पे भी लिखा गया है, in the month of Damodar one should daily worship Lord Damodar and take bath early in the morning, give charity and follow fasting vow. That is the duty of Vaishnavas. So this is the duty of the Vaishnavas, to get up early in the morning, take bath, and then worship the Lord and chant His holy name. Chanting is also worship. So that's why we can increase our chanting commitment. At least we can chant whatever number of rounds we are chanting. We can try to chant it more and more attentively. So that will benefit us a lot. So in this way, when we follow this various vows, it is very very pleasing. So इस कार्तिक महीने में बहुत सारे जैसे एक दामोदर लीला जो आता है, दामोदर लीला इज वेरी फेमस। कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को पता है दामोदर का मीनिंग क्या होता है? दाम उदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दामोदर? उदर मतलब तो पता है ना, इन मराठी उदरनिर्वाह विषय। उदर मीन्स द स्टमक। So stomach and udar, damodar. Dam means rope. Basically, the one whose belly is bound by the rope. So that is called damodar. So एक बार क्या हुआ था, कृष्ण जब वृंदावन में थे तो कृष्ण हमेशा, एक दिन जब ही सुबह उठे थे, उठने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी माता शी वॉज मेकिंग चर्निंग बटर, और बटर चर्निंग करते वक्त उन्होंने देखा कि बटर बन गया था। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ स्पीक्स लाइज। ऐसे तो कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स बेसिकली विरोधक स्थिति। जनरली भगवान के पास टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पास टाइम में भगवान दिखाते हैं कि वो विरोधाभास बेसिकली करते हैं। जैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ स्पीक्स लाइज, मतलब भगवान जो भी कहते हैं वो सत्य होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो पास टाइम है, लीला है, उसमें भगवान झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जब वो मटका तोड़ देते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैंने नहीं तोड़ा। एंड द माता शी इज वेरी एंग्री, यशोदा, ही सेज दैट अरे मेरे सामने ही तोड़ा है, ऐसे कैसे बोल सकता। तो देन यशोदा माई टेक्स अ स्टिक एंड शी runs after Krishna. So another thing comes in, another contradiction comes in that. It is said that the fear personified is fearful. मतलब जो सबसे जिसका शरण लेने के बाद अभय प्राप्त होता है, वो व्यक्ति खुद भयभीत होके भाग रहा है अपनी माता से। सो दैट इज ऑल्सो विरोधाभास, इसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि वो, और यशोदा माई जब उनको पीछे भाग रही थी, देन फाइनली शी कैचेस कृष्णा। तो ऐसा कहा जाता है कि द फास्टेस्ट गॉट कॉट, मतलब जो सबसे तेजवान व्यक्ति है, जो इतना तेजी से भाग सकता है, बिकॉज ही कैन द एंटायर यूनिवर्स, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान कहीं पे भी जा सकते हैं। भगवान सबसे फास्ट है, मतलब चलने में या फिर वॉट एवर। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान चल रहे थे, तो जिस पीछे जो असुर आ रहा था, वो उसको वो एक्चुअली उसको भागना पड़ रहा था, और भगवान जस्ट बहुत पीसफुली चल रहे थे। तो उससे के फास्टेस्ट गॉड कॉट। तो इतना भगवान ऐसे होते हुए भी वो, उनको यशोदा माई ने पकड़ लिया था। उसके बाद भगवान को बांध दिया। एक्चुअली बांधना बहुत भगवान को कोई कौन बांध सकता है? भगवान मीन्स पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा विश्व तो भगवान में ही है। तो कैन कोई हम में से कोई पूरे विश्व को बांध सकता है किसी रस्सी में? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यशोदा माई उसको ट्राई कर रही थी। यशोदा वाज टेकिंग द वो रोप, जो दोरा था, उसको लेके भगवान के स्टमक को ऐसे पकड़ के एक वुडन मॉर्टर था, उससे बांध रही थी। लेकिन उसने बहुत ट्राई किया, वो हो ही नहीं रहा था। तो देन यशोदा माता शी एक्चुअली वो दूसरों के घर से भी बहुत सारा धागा लेके आती है, दैट क्या बोलते, धागा को क्या बोलते हैं, दैट रोप। रस्सी। बेसिकली वो रोप लेके आ रहे थे।
उसको बांध रहे थे, तो हर बार वो 2 उंगली छोटा पड़ता था। पूरे बांधने जाओ, जैसे ही बांधना कंप्लीट हुआ 2 उंगली शॉर्ट पड़ता, तो वो बांध ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद और उन्होंने रस्सी लाए, रस्सी या बहुत सारे रस्सी लाए अलग अलग जगह से। उसके बाद बांध रहे थे, उतना बड़ा रस्सी हो गया था। और जब भगवान को बांधने गए तो फिर से वो 2 उंगली शॉर्ट गिर रहा था। माता को समझ ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। और माता पूरा पसीना आ रहा था, शी वॉज स्वेटिंग एंड शी वॉज ट्राइंग टू टाई द रोप, रस्सी को बांधने का ट्राई कर रही थी, बट नहीं हो रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली इट इज सेड दैट भगवान एक्चुअली was not bound by the rope, but he was bound by the love of Mother Yashoda. भगवान किसी भी मटेरियल चीजों से एक्चुअली बंधे नहीं जा सकते, लेकिन जो भगवान के भक्तों का जो प्रेम होता है, उससे भगवान तुरंत ही अपने आप को ये सबमिट कर देते हैं उनको। तो उसी तरीके से, तो ऐसे कहा जाता है कि जो 2 उंगली जो छोटा पड़ गया था, वो उसको बोलते हैं एंडेवर एंड मर्सी। तो एंडेवर मीन्स हमारा what endeavors we do in our life, it can be anything, so any activity, उसमें हमारा endeavor plus mercy of the Lord, so दोनों बहुत ही important है। अगर कोई बोलेगा सिर्फ मैं endeavor डालूंगा, endeavor means बेसिकली हमारा कोशिश जो हम करते हैं, जैसे हम कुछ स्टडीज कर रहे हैं, कुछ एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा एंडेवर तो है, उसके साथ हमको भगवान का कृपा भी होना आवश्यक है। तो भगवान का कृपा प्लस हमारा एंडेवर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ही हमको उसका फल प्राप्त होगा। तो इट इज लाइक 99% एंडेवर एंड 1% मर्सी। तो 99% एंडेवर करने के बाद ही मर्सी मिलेगा। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, एनीवे तो सब कुछ तो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मैं भी अगर मैं पढ़ाई नहीं भी करूंगा तो भी अगर मिलना है मार्क्स तो मिल ही जाएगा। एनीवे भगवत गीता में लिखा है कि जैसे आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से मिलता है, तो मेरे जैसे प्रीवियस कर्म होगा उसके हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली गलत एप्लीकेशन है भगवत गीता का। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि आप कुछ मत करो और मैं आपको फल दूंगा। भगवान कहते कि आप एंडेवर करो, देन मैं आपको मर्सी दूंगा। और ये दामोदर लीला में बहुत ही अच्छे से हमको पता चलता है कि भगवान उनके माता को भी टेस्टिंग कर रहे हैं। माता इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड दैट she could not do it, but because of her consistent effort, hard work, and love towards Krishna, actually she could bind it. सिमिलरली जो भी हम एंडेवर करते, कार्य करते हैं, हमको बहुत ही सतर्क होना चाहिए। और हमने हमेशा जो सोचना चाहिए कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें इससे। एट द सेम टाइम आई हैव टू गिव माय बेस्ट। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा बहुत कर दिया और छोड़ दिया और जो भी है भगवान देख लेंगे। नहीं, वी हैव टू डू अवर बेस्ट। इफ वी हैव टाइम वी शुड डू कंप्लीटली गिव इट फॉर दैट एंड देन व्हेन द रिजल्ट कम्स, ऐसा बोला जाता है कि जो परीक्षा है उसके पहले हम उसके लिए पूरा समय उसी के लिए दें, और जैसे ही एग्जाम लिख दिया उसके बाद बस, उसके बाद रिजल्ट का चिंता नहीं करना चाहिए कि अभी क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएगा क्या। ऑलरेडी जो करना था आपने कर दिया, अभी रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट इन माय हैंड, बिकॉज आई डिड माय एंडेवर। नाउ रिजल्ट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम। So that's why, so इसी तरह से endeavor and mercy, these are very important, especially for all the students, that we study very nicely, study very hard, and get good marks, so that we can become nice representative of the Lord Krishna. We can be nice representative of the Lord, can represent Krishna everywhere, we can preach everywhere. और ऐसा भी इवन हमारे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे अगर माता पिता देखते कि अरे आफ्टर रीडिंग भगवत गीता, आफ्टर गोइंग टू दिस भगवत गीता जो क्लासेस अटेंड कर रहा है, उसकी वजह से मेरे बेटे और बेटी में इतने सारे चेंजेस दिख रहे हैं, उसका स्वभाव चेंज हो गया। पहले तो मैं उसको कुछ परचेसिंग के लिए वगैरह कुछ भेजता था शॉप्स में, अगर वो जाने के लिए रेडी नहीं रहते थे, और अभी तो तुरंत हो जाते हैं एकदम। अच्छा स्वभाव चेंज हो गया है, मार्क्स बढ़ गए उसके एग्जाम में। तो ये सब अगर देखते हैं माता पिता, तो उनको भी लगता है वो जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और आपके स्वभाव को देख के, आपके प्रैक्टिस को देख के वो भी भक्त बन जाएंगे, बहुत ही तुरंत वो भी भक्त बन जाएंगे। और बहुत सारे हमारे जो भी भक्त हैं, विजय प्रभु के भी पेरेंट्स और बहुत सारे जिनके भी माता पिता हैं डिवोटी, उनके पेरेंट्स भक्त बने हैं क्योंकि वो डिवोटीज ने बहुत ही अच्छे से उनका स्टडीज किया है, उनका पूरा
कार्य बहुत अच्छे से संभाला है, उसकी वजह से वो भक्त बने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे अच्छे एंडेवर के वजह से भगवान हमारा कृपा इस तरीके से आता है। भगवान हमारे सारे प्रीचिंग प्रयासों में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान का भक्ति हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और स्पेशली इन द मंथ ऑफ कार्तिक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस अभी 2 मिनट हम एक भगवान का जो ऑफर करते हैं लैम्प, उसके कुछ महत्वपूर्ण ये है, वो देख के हम आज के प्रवचन को विराम देंगे। और किसी का अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम ये पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ये छोटा सा पीपीटी है, सिर्फ 2 स्लाइड्स है इसमें। सबको दिख रहा है पीपीटी? Yes, Raj. ओके। सो ग्लोरीज ऑफ ऑफरिंग द लैम्प, तो एक एक करके टोटल 5 ग्लोरीज आर देयर, वन डिवोटी कैन रीड इट। फर्स्ट वन, When one offers a lamp during the month of Kartik, his sins in many thousands and millions of births perish in half an eye blink. यस। सेकंड वन, One attains a pious यस, One, बोथ है म्यूटेड। हाँ, one attains the pious result 10 million times greater than the result obtained by bathing in Kurukshetra during the solar eclipse or bathing in the river Narmada in lunar eclipse. you can next one. Others can also read. आशीष गोलंडे। yes, sir. O tiger of sages, for a person who thus offers a lamp burning with ghee or sesame oil, what is the use of performing an Ashwamedha yajna? या अश्वमेध यज्ञ बनने के बाद जो फल मिलता है, वो फल आपको एक लैम्प ऑफरिंग करने में मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट वन। Even if there are no mantras, no prayers, and no purity, everything becomes perfect when a person offers a lamp during the month of Kartik. Yeah. So even if there are no mantras, no pious deeds, still when a person offers, it becomes successful. And the last one. Person who during the month of Kartik offers a lamp to the Lord Keshava has already performed all yajnas and bathing in all holy rivers Yeah. or holies. इस प्रकार से ऑफरिंग लैम्प के सारे इसके महत्व है। तो जहाँ पे भी आप हैं, अगर आप किसी सेंटर में रहते हैं तो सेंटर में ऑफर कर सकते हैं। अगर आप घर पे रहते हैं तो घर पे एक राधा दामोदर का एक फ्रेम यू कैन कीप, एंड एवरी डे यू कैन ऑफर अ फ्लावर ऑल्सो, एंड यू कैन ऑफर अ लैम्प दैट इज वेरी वेरी ग्लोरियस। तो जनरली ऑफरिंग लैम्प वी डू इन अ वे लाइक 4 to 3 7। 4 मीन्स टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के चरण कमल होते हैं, उसको 4 बार हम लैम्प ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं। उसके बाद जो लोटस नेवल होता है भगवान का नाभि, उसको 2 बार। उसके बाद जो भगवान का फेस, लोटस फेस होता है, मुख, उसको 3 बार। फिर भगवान यदि आप अर्पण कर सकते हैं। तो ये पूरा महीना हम जितना स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा, आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे, अपने जप को बढ़ाएंगे, अपने ऑफरिंग द फ्लावर टू द लॉर्ड और दिया लैम्प टू द लॉर्ड, और भगवान की किताबें पढ़ना। मैंने सुना है कि आपका रेगुलरली बुक रीडिंग भी होता है, भगवत गीता और अदर श्रीला प्रभुपाद बुक्स, तो उनको पढ़ना। उसके बाद ये सारे संडे सेशंस अटेंड करना, तो ये आप करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। So thank you very much. Very happy and inspiring to see so many wonderful devotees coming very frequently, coming for this association online, but being very sincere and patiently hearing for the entire session. So I thank you all for giving me this opportunity to speak the glories of the Lord.
Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Yes. Hare Krishna. If all are having any doubt, Roji is there. You may ask your doubts. Yeah, any one question we can take, then I can end the session. Roji, may I ask the question from on the behalf of our all the students actually? I just wanted to ask a question on the behalf of all the students. So, Yes. actually, Guruji, we are running this activity since last so many months. We were active since last 6 to 7 months, but before 3 months we took a vow that now we'll do it nicely only. And somehow or other, whatever is there in our hand, as we are having so many students from different locations. Some are from Naranggaon, some are from Nasik, some are from Zunnar. There are so many places actually. I'll say from by. So it's really difficult for us to get gather at one place, because of which we have chosen this target of like of doing these online classes. But at Yeah. the same time, we also want to contribute something in Srila Prabhupada's mission. But it's not whether that we will decide ourselves what we want and we'll proceed ahead along with it. We need you may say, you may consider it an instruction, or you may consider it as the suggestions. We need all these things from senior devotees, those who are coming here or giving lectures. So on the behalf of all students, those who are boys and girls, I just wanted to ask a question. How can all of us render service like ahead, whatever time we are having in our hands, through this online preaching or offline preaching? Or what should be our next step? Please guide us actually. Please tell us how we should exceed ahead, in case of girls also, in case of boys also. Yeah. So basically, engagement is surely required, and all of you are already engaged very nicely. You are preaching in terms of practicing yourself and connecting many of your friends and all to Krishna consciousness. So this is one of the things that even though if you are staying in center, you will get automatically engagement. If you are staying in a far distant place, then you have to make engagement for yourself. One of the thing is now this online platform is very useful for us. So one important thing is be connected to some mentors regularly. So I think for boys, our Vijay Guru is taking care, and for girls, I think one Mataji, Sneha Mataji is there. So yeah, so they are taking care of all of you. So that is very good. Be in regular touch with them. That is the most important. In case you, and I feel even a regular reporting also should happen, or it may be already happening about the number of rounds you are chanting. You can every day report that today I completed this many rounds. Because whatever commitment we have, we should be able to do it every day. So it may be 4 rounds, but every day it should happen. And in case we find some difficulty in or any, sometimes we have to travel, sometimes the atmosphere is not favorable, or the place where we are staying, so we should take regular guidance. So even though association may not be physically available, but we have Prabhupada books. Srila Prabhupada said that I am forever there in my books. So in case there is no devotee in the entire planet, still don't worry, I am always there, he said. So I am there in my instructions. So anytime we open the book, actually we are associating with Srila Prabhupada. So we should only thing is opening. Opening is the only thing required. So we have to just endeavor to just take the book and open it. As soon as it opens, then automatically it will go ahead. But that first thing we have to do it. That endeavor we have to do, then the mercy will come through the books of Srila Prabhupada. So in that way, we engage ourselves in reading regularly. Reading is a very good habit. Nowadays, because of the social media and all, people are giving up the habit of reading, and they are getting into mobiles and laptops. And because of that, actually, many are facing the issues with the eyes, especially the IT employees. They go to the company whole night, from morning to night, they have to just sit in front of the laptop. So that gives very, their eyes become very, heat also increases in the body, and it gives a lot of effect. So one thing is we should read regularly Prabhupada books. Second thing is be regularly in touch with your mentors. And third thing is, even though you are staying different place, but still keep doing, taking up some services. Like even I think in this
warriors, you have Sankirtan warriors. Here also there are many online opportunities for service that we can do. The poster making, the reaching out the messages to many people. You can connect your friends. You can connect your relatives also to these programs, and that's how they will get connected. That is also service from our side. We are connecting them to Krishna consciousness. Another thing is also that one thing is also that every few months, even though you may be staying alone in different place, after every few months you should take advantage to go to the nearby ISKCON temple or come to Pune and take opportunity for different festivals like Janmashtami is there. Sometimes you can travel and come there for just stay there for a few days and then go back to your places. So wherever you are staying, be there, but in between take out some time, or we can have a camp also for all of you. There can be both Vijay Pro and Madhuji can take some camps, various different places. It can be small camps like even Devu or even Pandharpur also, because far away will be little difficult. But at least in Pandharpur, some camps we can do. So this is very good. Or even GV, we are in near Mumbai. There is a very wonderful Govardhan Eco Village near Bhiwandi. So we can take there also. Sometimes we can visit Juhu temple also. Prabhupada's quarter is there. In that way, we can have some kind of short camps in between. That will also help us to nourish. And connecting can be done anyway, any places. And eventually, one can even try that in case you are completed 12th, then if you are taking admission in some college into Pune or some other, in those college, that 4 years which you get, you can be in association of devotees. That will help us a lot. So in that way, we can try ourselves that we nicely get engaged and nourished in our life. Yes, Prajit. Thank you very much. Yes. Thank you very much. This is how I think. Yes. Thank you very much, Prajit. Most probably students are not having question, but thank you very much for such a nice and wonderful class. The glories of Kartik month, each and everyone should know regarding it, because as we are living in the world, and at the same time, where this is the hub of spirituality, we may say, in India, and in it also, like this Kartik month, which is there, is a really auspicious month where one can perform bhakti. So actually, we were unaware of the all these facts. Because of you only, we got to know about so many things. Now onwards, surely we will try to follow each and everything, like what you said, like how to offer lamps, the story of that mouse rat, and so many things. The story of the person who offered flower to Lord within the span of 20 minutes, and he got unlimited time. So actually, by hearing such stories, actually our enthusiasm increases. Actually, thank you very much, Ruchi, for your contribution. Actually, we need your guidance regularly, Ruchi. So that's why please show your mercy by giving your guidance, Ruchi. So I'll request each and everyone, please unmute your video and let us chant 3 times Hari Bol for Prabhuji. Yes, yes, sir. Hari Bol. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, bol, hari bol, Hari hari Bol. bol. Hari Bol. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Thank you, Krishna. sir. Thank you, Hare Krishna. Prabhu. थैंक यू वेरी मच ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आए. सो जिस प्रकार लेक्चर के अंत में मैं हमेशा 1 मिनट बात करता हूँ, आई वुड लाइक टू स्पीक जस्ट फॉर अ मिनट. तो उसके बाद में हम लोग मीटिंग को एंड कर देंगे. सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हर संडे को कुछ चीजें फॉलो कर रहे हैं. अब उसमें हम लोग एक प्रोग्राम और ऐड कर रहे हैं. अभी आप कहेंगे अरे यार पहले ये हो नहीं रहा, अब अगर इसमें भी अगर आप और प्रोग्राम्स ऐड करेंगे तो कैसे चलेगा. बट डोंट वरी, एक्चुअली मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटी के थ्रू इंजीनियरिंग किया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस करके अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट होके अपना जॉब कर रहे हैं. तो आने वाले संडे से हम और एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले थे, और वो था स्पेसिफिकली मे बी कुछ थर्सडे फॉर टेक्निकल एजुकेशन, समथिंग ऐसा, जिसमें स्पेसिफिकली वी आर गोना डील विद कि जो जो लोग अभी बड़े बड़े कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं. जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसमें आपको लास्ट टाइम बताया भी होगा, शी गॉट प्लेस इन गूगल, और वो उसका इंटर्नशिप खत्म हो चुका है, और एट द सेम टाइम उसे अमेजोन का भी बड़ा ऑफर मिला है. एंड शी इज अर्निंग मोर देन एज फ्रेशर, आफ्टर फ्रेशर शी इज अर्निंग मोर देन 25 lakhs.
सो उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एंड शी इज रियली ग्रेटफुल, शी टोल्ड मी दैट यस व्हेन आई रिक्वायर्ड आई एम रेडी टू गिव गाइडेंस। तो इसके अलोंग विथ हम लोग ये भी एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं कि हर एक संडे को बहुत मतलब आईटी में बहुत अच्छे स्तर पे अगर कोई पर्सन है, कोई टीचर है जो बहुत बड़े स्तर पर है, तो उन लोगों को 45 मिनट्स के लिए बुलाकर, हमारी मेजोरिटी में जो बच्चे हैं वो एक तो मेडिकल बैकग्राउंड से या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और इंजीनियरिंग में भी आईटी बैकग्राउंड से है। तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर से बच्चों ने किस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए, और कोई टीचिंग में आना चाहे तो फर्स्ट ईयर से कैसे उसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम लोग उनके सेशन अरेंज करने वाले हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, जैसे राधेश्याम प्रभु ने उस दिन कहा था, मॉर्निंग फॉर कृष्णा एंड इवनिंग फॉर स्टडीज। सो जैसे हम सब लोग एकत्र संघ में आकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में एक्सीड करें, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो भी हमारा मटेरियल लाइफ रहेगा या फिर जो हमारा करियर रहेगा उसमें भी हम बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़े, ये हमारा कर्तव्य रहेगा। तो अभी ऑलरेडी मेरा 10 लोगों से बात हो चुका है इसके रिगार्डिंग, जो कुछ डाटा इंजीनियर्स है, डाटा साइंटिस्ट है, बहुत आईटी में बड़े बड़े पद पे है, ऐसे लोगों से मेरा ऑलरेडी बात हो चुका है और दे आर रेडी टू ऑफर सेशंस एक्चुअली। तो आपके जो भी प्रश्न रहेंगे आपके फील्ड के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई पूछ सकता है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ तो क्या मैं आईटी में आ सकता हूँ क्या, किसी का और भी यूनिक क्वेश्चन रह सकते हैं। तो जैसे भी आपके क्वेश्चन है और कैसे आपने आगे जाना चाहिए अपने करियर में, उसके रिगार्डिंग आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। सो और एक चीज था, यही नहीं तो हम और एक ज्यादा और एक दूसरा भी एक प्लान लेके आ रहे थे। इट मीन्स व्हाट कि आपने देखा होगा जो भी बच्चे 11th 12th में हैं उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है पढ़ाई में। सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जब बच्चा होता है वो होता है 12th का एंड वाला टाइम। तो इसीलिए हमारी टीचर्स की टीम है, जिन टीचर्स की टीम में मैं ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरे एक मित्र है जो कि एलन में है जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, और भी जैसे स्नेहा माता जी को वैसे बायोलॉजी आता है तो फिर वो बायोलॉजी के लिए नीट के लिए पढ़ाते हैं, तो उनका भी गाइडेंस हमें रहेगा। और एक मेरे मित्र है दूसरे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो भी नारायणा में है। तो बड़े बड़े ऑनर इंस्टीट्यूट्स में जो लोग हैं उनको एकत्रित लेकर एक छोटा प्रोग्राम एस्टेब्लिश करने का मेरा दिमाग चल रहा है कि जो भी 11th 12th में जेई के लिए बच्चे हैं उनके लिए फ्री मेंटरशिप, मतलब उससे हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे और उनको हम हर वीकली उनका रिपोर्ट लेकर उनको गाइड करेंगे कि उन्हें स्टडी कैसे करना चाहिए बेस्ड ऑन भगवत गीता। सो बेस्ड ऑन भगवत गीता इट मीन्स हमारा मेन मोटिव है कि उनको 2 साल हेल्प करना, अंत में वो माला धारण करे, माला धारण करे मतलब माला करे, एट द सेम टाइम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, जैसे कि आप सभी लोगों को हमने गाइड किया। तो अभी तक तो स्टूडेंट लेवल पे राधिका गायत्री मुझे हेल्प कर रहे थे, बट अभी मैंने सोचा मुझे इसमें छलांग मारनी चाहिए, और उसके लिए और हम और एक चीज करने वाले हैं जो कि हमें भगवत गीता के ग्रुप के थ्रू जो लोग हमें मिले थे, जैसे कुछ लोग नगर से कनेक्टेड है, कुछ लोग यहाँ वहां से कनेक्टेड है, तो हम लोग विलिंगली ट्राई कर रहे हैं कि उन लोगों को उसी सेंटर से कनेक्ट किया जाए, जिससे कि थोड़ा सा इसमें भी बर्डन कम होगा और हम और सारे प्रोजेक्ट्स लाके और लोगों को जोड़ सकते हैं, बट यू विल बी द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वॉरियर्स ओनली। करेक्ट करेक्ट। सो या स्नेहा माता जी इज द लीडरली पर्सनालिटी, वी ऑल आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माता जी एक्चुअली, एंड मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कभी बताया नहीं किसी को, लेकिन मैं भी उनके लेक्चर सुनता हूँ और माता जी बहुत अच्छे से क्लास देते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स मेरे लेक्चर में माता जी के भी रहते हैं। सो शी इज लाइक मदर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ यू। तो उनका तो गाइडेंस हमें रहेगा ही। यस, एंड शी विल बी लीडिंग। No, Prabhuji, I'm just serving everybody. Please, Prabhuji, ऐसा नका बोलो. I'm just your servant. आप जो order करेंगे, I am always there. यस So एक्चुअली माता जी वी please. ऑल आर विद अस, विद ओनली लाइक हम कर रहे प्रभुपाद के मिशन को आगे एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे देखा, मैंने एक चीज को ऑब्जर्वेशन किया, एक प्रोजेक्ट से कुछ ही लोग आते हैं। जैसे मान लो अगर भगवत को स्टार्ट किया उससे अगर 8 या 10 लोग आ गए, 8 10 भी बहुत बड़ा नंबर है, 5 6 लोग ही आ जाते हैं, और उसके बाद में हमें सोचना होगा कुछ नए वैसे। तो फिर मैंने सोचा और कुछ तो कोई होना चाहिए, तो मेंटरशिप, अब हम घर के टीचर हैं, हम लोगों को इतना गाइडेंस दे रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग पोस्टर छाप के मतलब ऑनलाइन वे से प्रचार करके बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन गाइडेंस दें, जिससे कि लोग हमसे कनेक्ट हो पाए। उसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि आईटी वाले लोग जिनको बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, जो यहाँ पे आना नहीं चाहते, उनको हम ऑफर करते हैं चीजें। हमारे बहुत सारे पहचान के लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में भी है, अमेजोन में भी है, बहुत सारी कंपनी में, यूएस में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उनका भी हम थोड़ा सा उपयोग करके ले सकते थे इस प्रचार कार्य में, जिससे कि बच्चों का भी बेनिफिट हो, बच्चों को भी अच्छा गाइडेंस मिले और उनको कृष्ण भक्ति भी प्रदान हो जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही नहीं तो और 3 4 चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। सो समय आने पे मैं आपको बताऊंगा। तो आने वाले जैसे कार्तिक यात्रा के बाद में 15 तारीख, अभी तो हम यात्रा के लिए जाएंगे सब लोग, अगर आपको पता नहीं होगा तो कार्तिक यात्रा नाम का एक यात्रा होता है, तो इस बार मायापुर में जा रहा है यात्रा, तो 15 दिन यात्रा रहेगा। तो जैसे यात्रा से हम आते हैं, हम इन 2 कोर्सेज के लिए स्टार्ट करें, तो आप सभी बच्चों का भी हेल्प लगेगा, जो बच्चे अंदर है उन बच्चों की हेल्प लगने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी आप हमारे हो, तो जैसे आपको इन चीजों का बेनिफिट मिला है, तो
आपकी मदद से मैं चाहता हूँ हम बाकी लोगों तक पहुंचे। पहले कोई नहीं था, पहले 4-5 गर्ल्स और 5-6 बॉयज थे, उनकी मदद से थोड़ा सा ग्रुप फैला के अभी हम 35-40 तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास 100 गर्ल्स एंड 100 बॉयज होंगे। हर रोज उठने के बाद और सोने से पहले मेरे दिमाग में ये चीज घूमती रहती है, क्योंकि राधेश्याम ने बोला है यू शुड हैव 100 बॉयज एंड 100 गर्ल्स। तो मैं चीजों को भूल नहीं पाता। तो ये हो सकता है जब आपका साथ हो। तो जैसे अब मैं, मेरे पास एक रिक्वेस्ट रहेगी, उसके जो पोस्टर्स जो हम लोग बनाएंगे, उस पोस्टर्स को अगर आप आपके स्टेटस पर रख पाए, और अगर आपके पहचान में अगर कोई 11-12 का अगर कोई है जो जेई नीट के लिए, या फिर खास करके ऐसे लोग जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो अगर ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनको हमारे संपर्क में ला सकते हैं, जिससे कि हम आपकी मदद कर पाए और उनको अच्छे मार्क्स ले जाने में मदद करें। तो उन लोगों को हम इवेंचुअली कनेक्ट करके ले सकते हैं। और दूसरा, स्ट्रिक्टली हम एक चीज करने वाले हैं, जो जो बच्चे जिन जिन सेंटर्स के उनको वहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे अभी soon we are gonna take initiative to connect the some girls are there from Nagar and some girls are there from Jalgaon, or so we are gonna try to connect them to once again their centers. So it will be really great initiative. यहाँ पे अंतरात्मा देवी माता जी है। माता जी बहुत सीनियर डिवोटी है और नगर से है, उन्हीं के अंडर गाइडेंस में हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। और वी आर हैविंग हर गाइडेंस। माता जी हर पद पे मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरे तो कोई पात्रता नहीं आपको गाइड करने की। अरे एक्चुअली एक्चुअली आपसे मैं प्रेरणा लेती हूँ प्रभु जी, और मैं कुछ प्लान करती हूँ। आपसे बात करने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा मिलता है कि चलो मैं भी कुछ करूँ गर्ल्स के लिए। तो आप उल्टा बोल रहे हैं थोड़ा सा, कि प्रेरणा मैं आपसे मैं लेती हूँ, मेरे से आप नहीं लेते हूँ। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली आई तो हर्ड यू हैव स्टार्टेड जपा सेशन, और मुझे सोच से पता चला कि कृतिका माता जी ने सबको बोला भी है। तो मैं चाहता हूँ कि विलिंगली सब लोग जपा सेशन ज्वाइन करें और आपका संग उन्हें मिले, क्योंकि आपका संग बहुत रेयर है। आई नो दैट सुबह के टाइम पे आप हमेशा जपा को छोड़ के किसी को समय नहीं देते, लेकिन अगर आपने सोचा है कि आप अगर सबको समय दे, तो समय बहुत वैल्यूएबल है। तो नगर से जो भी गर्ल्स कनेक्टेड है, आई रिक्वेस्ट देम कि विदाउट, जैसे आप अभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स का ग्रुप अगर ज्वाइन कर रहे हैं जपा के लिए, मैं कह रहा हूँ इसे स्किप कर दीजिए, और आप जो नगर का जो स्पेसिफिक लिंक आता है सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम का, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अनुष्का हो गई, अर्पिता हो गई, फिर बाकी सारी गर्ल्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके बाद, क्योंकि ये संघ बहुत ज्यादा रेयर है। बहुत ज्यादा, इतना रेयर है कि आप उसे मिस मत कीजिएगा। क्योंकि माता जी जो बताएंगे, या फिर क्योंकि उस पर्सन से सुनिए आप, जो पर्सन अपने जीवन में उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उस पर्सन से नहीं जो पर्सन करने का प्रयास कर रहा है, दिखाव कर रहा है। मैंने माता जी को इतने सालों से देखा है। माता जी स्ट्रिक्टली सुबह के टाइम पे उनके माला करते हैं, और जैसे उनके गुरु महाराज है हिज होलीनेस लोक स्वामी महाराज, उनके जपा सेशंस को लाइव अटेंड करके माता जी वीडियो ऑन करके प्रॉपरली माता जी जपा करते हैं, मैंने देखा है टेम्पल। तो अगर ऐसे भक्त का अगर आपको संग मिल रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माता जी, प्लीज गिव ऑल ऑफ अस एक्चुअली योर गाइडेंस एज वेल एज एसोसिएशन थ्रू योर लेक्चर्स। सो अभी आने वाले समय में मैंने आपको कहा भी है, जैसे कि हमें आपका भी लेक्चर अरेंज करना है, हमें आपसे भी गाइडेंस चाहिए एक्चुअली। वी सीक योर गाइडेंस, ऐसा है। प्रभु जी, मेरी कुछ पात्रता नहीं है, आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं मेरे बारे में। पता नहीं मैं इतने फॉलो करती हूँ नहीं करती हूँ। ये आप, आपका हृदय इतना बड़ा है, इसलिए आपको लगता है कि मैं, क्योंकि जो महान होते हैं ना, वो दूसरों के अंदर भी महान चीजें देखने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं माता जी, बट ये शाश्वत रियलिटी है, व्हाट आई एम सेइंग। तो जो सच सच है मैं वो कह रहा हूँ। अब क्या है कि भाई कितना भी अगर दिन भर कहो, तो आप एज यूर डिवोटी, सो आप कभी खुद पे सारे मतलब अच्छी चीजों को नहीं लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका नम्र भाव है। और मैं हूँ पतित, तो मैं बोलूंगा ही मैं हूँ ऐसा। तो ये दिन भर चलता ही रहेगा। बट द रियलिटी इज रियलिटी माता जी, ईच एंड एवरीवन नोज हु यू आर एंड हु एम आई। तो सबको पता है। सो बट स्टिल एज अ सर्विस, हम मतलब आप कैसा भी कंसिडर करें, लेकिन आपको हमें आपका गाइडेंस चाहिए माता जी, और आप श्योरली हमें गाइड कीजिए अकॉर्डिंगली। सो एक्चुअली वही दो दो प्रोग्राम्स के बारे में मुझे बच्चों को बताना था, क्योंकि है इनके स्टेटस पे जब कोई चीज आती है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो दो प्रोग्राम है, जो कि मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, और दूसरा मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो उसके लिए फिर बच्चों के लिए, बच्चों को कैसे फर्स्ट ईयर से गाइड किया जाए कि फोर्थ तक जाने तक बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे इसमें रहे। और मैंने आरती माता जी से भी कहा था इसके बारे में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को कह के रखा है, और बहुत सारे लोग मुझे हेल्प करने के लिए रेडी भी है इसके रिगार्डिंग। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग देयर टाइम्स टू गाइड आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जाके बड़े लीडर्स बनने वाले हैं सब लोग।
और हर लड़के में मैं निताई सेनी माता जी को और अंतरात्मा माता जी को देखता हूँ, और हर बॉयज में मैं राधे श्याम प्रभु को, और मतलब आगे जाके उनको सर्व करेंगे उसमें से, उस लेवल पे बनेंगे, उनके फिलोसफी उस लेवल पे डेवलप होगा, उतने सारे धर्म ग्रंथों का वो अध्ययन करेंगे, बड़े भक्तों से वो सुनेंगे, तभी वो वैसे बन पाएंगे। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हर बच्चा, अभी मैं भी 4 माला 2 माला कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उनका 12th खत्म हो जाता है, उसके बाद में इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हर एक बच्चे ने 6 राउंड पे आना ही चाहिए, और एट द सेम टाइम बस आना नहीं चाहिए, तो उनके उनके एरिया में जाके बड़े स्तर पर लीड करना चाहिए। तो आज भले ये 30 या 35 बॉयज दिख रहे होंगे, हम और भी बड़े स्तर पे जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इनको बनाया जाए। तो मान लो अगर हम रहे या ना रहे, लेकिन हर एक बच्चा जो भी यहाँ पे, उसने इंडिविजुअली खुद का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, उनके एरिया में वहां के बच्चों को बुला के, उनके कांटेक्ट के बच्चों को बुला के प्रीचिंग का मिशन आगे जाके एक्सेट करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर आप देख रहे हैं जैसे कि कलयुग में कली का प्रकोप और बढ़ रहा है, और ज्यादा चीजें वर्स्ट होती जा रही है। तो अगर अच्छे स्वभाव वाले या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले लोग अगर आगे जाके एक्सेट नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हर एक वो पर्सन जो आज खुद को कमजोर समझता है, कल जाके उसे मिशन को लीड करना है, उसे सर्व करना है एज अ सर्वेंट की भावना से। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा लीडर बन गया, अब मैं आगे जाऊंगा, अब सब लोग मेरी बात सुनो, इस परिभाषा से नहीं, लेकिन इस परिभाषा से कि सबका सर्वेंट हो मैं, किसी को बिना दुखाए, जिसकी जितनी पात्रता है, जो जितना सेवा कंट्रीब्यूट कर पाए। मे भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मान लीजिए कोई बस एक पेपर उठा के मदद कर सकता है, तो उसकी उतनी हेल्प लेके, लेकिन जो जितना पात्र है उससे उतनी हेल्प लेके अगर हम लोग आगे बढ़ पाए तो दैट विल बी ग्रेट। और मैं आपसे सीखा है, सारे भक्तों से सीखा है। सो हमें आगे जाना है तो आपके गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी माता जी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि जो भी अभी हम लोग आगे जाके ये करेंगे, तो आपका सब लोग का सहाय लगेगा। और अगर कोई आपको डांट दे ग्रुप में, तो प्लीज उस पर भड़किए मत, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम लोग सर्वेंट है और हमें भी कोई डांट सकता है। अगर आप लोग उल्टा बोलेंगे उसे, या फिर ऐसे आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूँ, क्या सारे बच्चे ही है ना, तो कभी कभार कुछ हमारे मेन कोऑर्डिनेटर्स है, वो आपको बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो कर सकते हैं बात, समझ लेना। मेरे को डांटते हैं स्टूडेंट्स, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज रियलिटी। मान लो अगर मेरे को लिटरली परसों एक फीडबैक आया, मेरे को उन्होंने बोला, जैसे मैंने बोला अरे आपके भगवत क्लास में डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, यू शुड फॉलो इट नाइसली। समवन सेड मी आप कहाँ कर रहे हैं, आपने भी तो 2-4 भगवत क्लासेस मिस किए, ऐसा फीडबैक डायरेक्टली मुझे आ गया, आई हम्बली एक्सेप्टेड, यस दैट इज करेक्ट। क्योंकि क्योंकि अभी हम लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने किसी को बताया नहीं, दिस इज ऑफलाइन प्रोजेक्ट, कि लोनी में हम लोग खुद का एकेडमी चालू कर रहे हैं, तो 3-4 दिन उधर जाना पड़ता है, तो 1-2 बार मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैं भी रेडी होता हूँ कि कोई मुझे अगर झाप रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आई नीड टू एक्सेप्ट इट एक्चुअली, क्यों हो रहा है वैसा। तो अभी कल हमने फिर इंप्लीमेंट किया कि बॉयज को बोला, कल प्रणव को बोला था मैंने क्लास लेने के लिए, आशीष लेगा क्लास, तो उनका भी हेल्प लगेगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन है डिस्कंटिन्यू रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। अब 35 लोग ही है, आगे जाके हमें 3,500 लोग बनाने हैं, फिर 3,50,000 बनाएंगे, बट लोग बढ़ते रहने चाहिए, जब तक सांस है तब तक हम लोग कार्य करते रहेंगे। माला मत छोड़िएगा, माला सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रभु जी ने बताया, जिस दिन आप माला छोड़ लोगे उस दिन आप दिखाव कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है माला, चैंटिंग करना मत छोड़िए, एक माला क्यों ना हो, उसे कंसिस्टेंट रखिए, खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि भगवान आपके प्रति मुझे इतना समय देना ही है। इतना अगर आपने कर लिया, फिर आपको भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर छोटे हैं तो आप छोटे लेवल पे कीजिए, बड़े हैं तो बड़े लेवल पे कीजिए। खारुताई होती ती छोटे छोटे दगड उचलायचे ना, राम सेतू बनवण्याच्या वेळेस ना, त्याच्यानंतर जे हनुमानजी होते ते मोठे मोठे पर्वत उचलून आणायचे। भगवंतानी सेमच मर्सी दिली दोघांना, आपके केस में भी सेम रहेगा। और ये जो मेरा रियलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत धक्के खाने के बाद वाला है कि इस संसार में मात्र हरि का नाम ही है जो आपके काम आने वाला है, बाकी कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए जो जो हम कर रहे हैं उससे आप जुड़िए और मदद कीजिए, आपके एफर्ट्स और आपके ताकत के बिना ही आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे पता है। सो ऑफलाइन लेवल पे जो जो लेक्चर्स जपा टॉक हो रहा है उसको करिए अटेंड, जपा सेशन करिए, स्नेहा माता जितना अच्छे से बता रहे हैं उसको आप अटेंड करिए। वॉइस के केस में फॉलो कीजिए उन सारी चीजों को रेगुलरली। मे भी आपके जीवन में बहुत कठिनाई आएंगे, बहुत टाइम आपका बिजी है, आपके असाइनमेंट्स है, ये है वो है, मैं 100 चीजें समझ सकता हूँ। जैसे आपके डेथ शाश्वत है, जब आप मरने ही वाले हो, उसी प्रकार आपके माला भी शाश्वत होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, माला किए बिना हम सोएंगे नहीं, ऐसा। और रहा बाकी चीजों का, अगर आप किसी चीज में कम है तो आप आगे जाके एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अच्छे से अच्छे लेवल पे कर लेंगे। लेकिन आज से अगर आपका एक हरिनाम ले रहे हो तो उसको छोड़िए मत, लेते रहिए, कल 2 कीजिए, परसों 3 कीजिए, करते रहिए। एक्चुअली इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही शाश्वत चीज है यहाँ पर, डेथ। आप सब लोगों के लिए सबका समय आने वाला है, उस समय से पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना है। प्रभु जी ने लेक्चर में 2 चीजें बताई थी, हमें प्रश्न करना चाहिए
कि एक्चुअली अभी इस परिस्थिति में सफर क्यों कर रहे हैं, है ना? क्लेशास से हम सफर क्यों कर रहे हैं, 4 प्रॉब्लम जो है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज से हम तकलीफ में क्यों है, प्रश्न करना चाहिए। और दूसरा मतलब हमारी लाइफ का गोल क्या है, प्रश्न करना चाहिए। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे बॉयज से सारे गर्ल्स, यू ऑल आर लाइक माई हैंड्स। हाथ ही नहीं रहेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बी सीरियस। आप भक्ति में सीरियस होते तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि लोग यहाँ पे आए और अपना वीडियो ऑफ करे बस सुने। नहीं, यू शुड टेक लीड। जो स्पीकर आ रहा है आपसे बात करने के लिए आ रहा है, फिर आपका वीडियो ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आपको लग रहा होगा ना वो पर्सन चीप है, वो पर्सन चीप नहीं है। परसिस्टेंट में 2 साल जॉब कर रहे हैं, अभी उनका 12-15 साल का एक्सपीरियंस रहता, लाखों में कमाते वो पर्सन, लेकिन स्टिल वो पर्सन अपने जीवन का त्याग कर कर अगर भगवंता का प्रचार कर रहे हैं, मतलब वो पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे स्तर का पर्सन है। तो वो आपके लिए यहाँ पे आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोगों के वीडियोस ऑन होने चाहिए, आपने तिलक लगाना चाहिए। नहीं है हमारे घर पे तिलक, ठीक है, एटलीस्ट वीडियो तो ऑन कीजिए। मैंने बहुत काम कर लिया है, मैंने बहुत सेवा कर लिया, मेरे को 8 दिन गैप चाहिए। अरे आप किसके लिए सेवा कर रहे हो? आप कृष्णा के लिए सेवा कर रहे हो, आप खुद के लिए सेवा कर रहे हो। बहुत हो गया, मैंने बहुत पोस्टर बना लिया, अब मेरे से काम नहीं होता। अरे किसके लिए आप कर रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ग्रुप के ऊपर उपकार कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप सब लोग कृष्ण के प्रेजेंस में कृष्णा के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तब जितना, जैसे प्रभु जी ने बोला, हर एक चीज को नाप रहे कृष्ण। हर एक एफर्ट जो आपने लिया है, हर एक वॉइस को जोड़ा गया है या फिर हर एक पोस्टर बनाया गया है, हर एक टाइपिंग में हर एक वर्ड्स को टाइप किया गया है, कृष्णा उसका नोट रख रहे हैं कि इसने मेरे लिए एफर्ट लिया है। सो yes, yes. Sneha, this is not for you actually. This is for all students actually. What I am saying. So, क्योंकि अभी समय है, सब लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक बार सब लोग चले गए फिर मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँ। इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपना पहले तो वीडियो ऑन रखिए। संडे के क्लास को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, सुबह 10 बजे रहते हैं, प्रायोरिटाइज कर लीजिए। सुबह के जपा सेशन को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। आधा घंटा आपसे आप जपा करे। आप रेस में नहीं दौड़ रहे इसलिए आपको गोदी में उठा के दौड़ रहे हैं, ऐसा वाला भाग है। सुबह सुबह माता जी 6:30 बजे उठ के अगर आपको जपा का सेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है, उनको केयर है कि आपका जपा होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? बॉयज के सेशन में कोई सीरियसनेस की जरूरत है। मैं मानता हूं जब धर्म के कार्य के लिए आप तलवार निकाल के आगे आ जाते हैं, जब भी कुछ भी होता है हिंदू मुस्लिम आप तुरंत ये कर लेते हो, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। सबसे पहले तो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। शास्त्र इंपॉर्टेंट है, शस्त्र तो कोई भी उठा ले। तो आप थोड़ा सा बॉयज और गर्ल्स, आप सभी लोग सीरियस हो जाइए। नहीं होंगे तो फिर मतलब नहीं है। तो वीडियो नेक्स्ट लेक्चर से आप खुद होके ऑन कीजिए, लगना चाहिए सबको। बाप रे क्या शिष्य है मेरा, बिना बोले सुन रहा है सारी चीजें, है ना? मुझे अभिराज को देख के बड़ा आनंद हुआ, उसने जो तिलक लगाया है वो खतरनाक तिलक लेकिन लगाया और वो वीडियो ऑन करके बैठा है। सो आई एम अप्रिशिएटिंग द बॉयज कि सच में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो ना हो, आप वीडियो ऑन करिए, बैठ जाइए। अगर आपके घर पे अच्छा प्लेस नहीं बैठने के लिए, साड़ी लगा दीजिए पीछे और बैठ जाइए। कुछ भी नहीं है तो ठीक है, पीछे गटर दिख रही है, चल जाएगा। किससे छुपा रहे हो? हमारी सबकी परिस्थितियां वैसी है, बाहर के गटर को छुपा लेंगे, हृदय के गटर का क्या करेंगे ना? तो उसको साफ करना है तो हमें प्योर भक्तों के सामने आना पड़ेगा। उनका प्योरिटी इतना ज्यादा है कि एक बार आपको देख ले तो आपको पवित्र कर देंगे। आप यकीन मानिए मेरा, यकीन मानिए, आप उनके प्रेजेंस में रहिए और आने वाले समय पे भी जो भक्त आएंगे सब प्योर रहेंगे, वैसे ही लोग रहेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मैं बहुत केयर लेता हूं कि आपके संपर्क में कोई भी ऐरा गहरा ना आए। तो अगर हम इतना ज्यादा केयर लें तो आप भी केयर लीजिए कि आप उनके संपर्क में जाए। जो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, बी सीरियस। मुझे लग रहा, आपको लग रहा होगा मैं भी, सर कॉलेज लाइफ भी, आपके कॉलेज लाइफ को कोई नहीं रोकने वाला। सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अपने ग्रुप में ही होता है। सबसे ज्यादा अच्छे कॉलेज में जाने वाले बच्चे अपने ग्रुप के ही है। डोंट वरी। आपके स्टडी के रिगार्डिंग, आपके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा केयर मैं खुद लूंगा। जो मुझे एक बार मैसेज करके बोलता है मेरा एग्जाम चालू हो रहा है, उसको 15 दिन में फोन भी नहीं करता, ना ही किसी को करने देता हूँ। उसका पढ़ाई उसे करना चाहिए, मैं खुद एफर्ट्स ले लूंगा। आपने देखा होगा तो स्पिरिचुअल वॉरियर्स के ऊपर के लास्ट 24 श्लोक का मैंने अकेले बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि बॉयज के एग्जाम्स थे, बॉयज बहुत ज्यादा बिजी थे, बहुत बिजी रहते हैं हमारे बॉयज, है ना बॉयज? सो उसकी वजह से हमने ऐसा किया है। लेकिन बताने का मर्म यह है कि कोई नहीं, अगर तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए समय। और हमें एक सिचुएशन ऐसा लाना है कि हमें बहुत सारे बॉयज गर्ल्स लाने हैं और अलग सेंटर्स को देने हैं। हमें सबको होल्ड नहीं करके रखना है। हमारा टीम आखिर तक मुझे 30 या 35 का ही रखना है, जो डेडिकेट रहेंगे और रुक जाएंगे, या फिर जो कर रहे हैं अच्छे से और कर पा रहे हैं। हम सबको नहीं हैंडल कर सकते, हर रोज हम 100 लोगों को कॉल नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, जो लोग अदर लोग जो एफर्ट ले रहे हैं उनको भी हेल्प करना है, उनको हमें बॉयज गर्ल्स देने हैं। तो इस विचार से हमें चलना है। तो जल्द ही जल्द हम उस कगार पे भी रहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों के साथ की जरूरत है। तो जपा सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे अटेंड कीजिए। संडे का क्लास अटेंड कीजिए। सैटरडे को माता जी का भगवत क्लास रहता है, वो भी अटेंड कीजिए। प्रभु जी का भी सैटरडे का क्लास अभी 1 सेकंड स्टार्ट हो चुका है, उसे भी अटेंड कीजिए।
बुक रीडिंग भी रह सकता है, अगर आप अटेंड करें तो वो भी अटेंड कर सकते हैं आप। एट द सेम टाइम आपका टेक्निकल सेशन, आप बताइए आपको किस में गाइडेंस की जरूरत है, हम फोन करेंगे, हम हाथ पैर जोड़ के लाएंगे उन लोगों को आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हार मत मानिए, आप आगे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि जो भी हेल्प हमसे हो, हमारे स्पिरिचुअल वॉरियर्स एंड वॉरियर्स से आप लीजिए, सभी उसका पार्ट है, अभी तो सारे के सारे बच्चे उसका पार्ट है, लेकिन हम चाहते हैं अभी नंबर बढ़े, तो आप सभी लोगों की सहायता की जरूरत है। सो प्लीज हेल्प अस बाय praying for us and at the same time taking the required efforts which you can, जो आप कर सकते हैं आपके स्तर पे। आपका, अब मेरा जीवन तो मैंने यही बना लिया है कि इसको आगे ले जाना है, आप भी आपके जीवन का पार्ट इसे बना सकते हैं। सो कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज चांस था इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट सेशन से मैं ट्राई करूंगा कि सबके वीडियोस ऑन रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। माता जी आपको कुछ ऐड करना है किसी को? स्नेहा माता जी, अंतरात्मा माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? नो प्रभूजी, जे काही तुम्ही सांगितलं लाईक इट वॉज परफेक्ट. विल ट्राय टू फॉलो इट ईयर से. यस माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले सत्र में। हरे कृष्णा, मिलते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।